Hello class 8 students. Welcome back in your computer class. Today we are going to learn about the Visual Basic 6. Basically the what is Visual Basic? Visual Basic is a programming language. Visual Basic is an easy and popular programming language. It was developed by Microsoft in May 1991. It is based on the BASIC means beginners all purpose symbolic instructions code. This is the full form of the basic language and provides a variety of tools to create user friendly applications with graphical user interface. Um, and that's why it is called Visual Basic. With Visual Basic, different Windows based applications and games can be developed. By using the Visual Basic, you can create your own applications or game. Other programming language like C++, Java, वैसे ही विजुअल बेसिक से भी आप एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं. Let us learn to start and use Visual Basic. Starting Visual Basic, how to start the Visual Basic? First, you have to click on the Start button. Then you have to choose all programs. Then in all programs list, you have to choose the Microsoft Visual Studio 6.0. Then Microsoft Visual Basic 6.0. Then you will see the following screen. When you open the Microsoft Visual Basic, this type of window will appear in your computer screen. This is the home page of the Visual Basic. Now in this you have to choose the extend exe file. This extend exe file you have to choose, then click on the open. Select the standard exe options and click on the open to click a new Visual Basic program. The following screen will appear. This is the your new created Visual Basic form, part of the VB screen Visual Basic. Now, integrated development environment with many tools provide us an interface where we can design, edit, compile and execute the applications on a single platform. This form shows you the single platform where you can create or develop the any applications or games whatever the you can design, edit, compile or execute the applications only on the single platform. Components of Visual Basic. Now what are the components of the Visual Basic? First, title bar. As you all know, what is the title bar? Title bar always shows the your currently open project name. Always display the name of the currently open project. Next is menu bar, and menu bar contain many menu items, sub menus. These items gives access to various options which help in developing the applications. These are the menu bars: file, edit, view, project, format, tools. These are the menu bar. In this there is many menu items which you by the help of these menu bars you can access your application. Next is toolbar. Toolbar contain small icons that give access to frequently used menu items. These icons act as the shortcuts to the options available in the menu bar. मेन्यू बार के अंदर आपके जैसे ऑप्शंस आते हैं, आपके कमांड्स आते हैं, उन्हीं को यहाँ पर शॉर्ट आइकन्स दिए गए हैं आपको आप डायरेक्टली ओपन करने के लिए. नाउ
Form windows. A form is an interface using which a user interact with the applications. This is the form with is an interface using which user interact with जब भी हम कोई एप्लीकेशंस बनाते हैं तो किस पे बनता है, फॉर्म्स पर. अ फॉर्म कंटेन मैनी कंट्रोल्स एलिमेंट्स. इन फॉर्म्स पर बहुत कुछ कंट्रोल एलिमेंट्स भी हम ऐड कर सकते हैं और कंटेन करते हैं ये, जैसे कि लेबल, टेक्स्ट बॉक्सेस, कमांड बटन एक्सेट्रा. यूजिंग दिस कंट्रोल्स अ यूज़र एंटर डेटा एंड गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द एप्लीकेशंस. और इन्हीं यूज़र्स डेटाज पे हम क्या कर सकते हैं, इन कंट्रोल्स को यूज़र्स एंटर करता है, डेटा एंटर करता है, गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द एप्लीकेशन, ताकि हम इन एप्लीकेशंस में इंस्ट्रक्शंस दे सकें. The form window provide us with a blank form where you can place various control as per our requirement. Next is properties window. Properties are attributes that define the appearance and behavior of the object. Whatever the object you have, the property window will define the appearance and the behavior of that object. Forms have many properties such as name, caption, font, color and border style etc. अब आपका फॉर्म है, आपने फॉर्म में बना दिया, तो आप उसमें जब भी आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो उसमें आपको नेम डिस्प्ले करना होगा, कैप्शन देना होगा, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, बॉर्डर स्टाइल एक्सेट्रा. Properties window is used to set the properties of the form and other controls placed on them. These are the properties of the form, and the properties window control all these property of the form placed on them. टूल बॉक्स. एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नेम दिया गया है टूल बॉक्स. टूल बॉक्स किस लिए होता है, हम जैसे घर में टूल बॉक्स होता है हमारे, तो उसका हम इक्विपमेंट्स को रखने के लिए, कंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं. वैसे ही कंप्यूटर में टूल बॉक्स होता है जो कंटेन करता है वेरियस कंट्रोल्स को, सच एज कमांड बटन, text button, label etc. These control can be added to form by simply dragging and placing them on the desired location. इन टूल्स को आप कैसे ऐड करेंगे फॉर्म में, सिंपली आप उनको ड्रैग करेंगे और जहाँ भी उनको आपकी लोकेशन, जो भी फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है आपको वहाँ उनको लोकेट करना है, वहाँ पर उनको ड्रैग करके प्लेस कर देंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द विजुअल बेसिक टूल बॉक्स. विजुअल बेसिक टूल बॉक्स के अंदर जो इक्विपमेंट, मतलब हमारे जो कंट्रोल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. द टूल बॉक्स कंटेन ऑल द टूल्स, ऑल कंट्रोल्स दैट आर यूज टू डिज़ाइन अ विजुअल बेसिक फॉर्म. विजुअल बेसिक फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए जितने भी कंट्रोल्स और टूल्स हम यूज़ करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. वी क्लिक ऑन द डिज़ायर कंट्रोल्स टू प्लेस इट ऑन द फॉर्म. इन कंट्रोल्स में से अगर हमें किसी भी कंट्रोलर को फॉर्म पर प्लेस करना है तो उनको क्लिक करेंगे, विच वी विल फाइनली डिस्प्ले ऑन द विजुअल बेसिक इंटरफेस. लेट अस लुक एट द फंक्शंस ऑफ ईच कंट्रोल इन द ब्रीफ. फर्स्ट पॉइंटर. पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर डजेंट हैव एनी कंट्रोल फंक्शन. पॉइंटर का कोई कंट्रोल फंक्शन नहीं होता है, ये रेफर किया गया है टू कंट्रोल टू एज द ओनली कंट्रोल. इट इज़ ओनली यूज टू सेलेक्ट और डिससेलेक्ट द मेन्यू और कमांड. जो भी हम मेन्यू और कमांड फॉर्म पर प्लेस कर चाहते हैं उनको सेलेक्ट और डिससेलेक्ट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज पिक्चर बॉक्स. दिस कंट्रोल इज़ यूज टू डिस्प्ले इमेज ऑन द फॉर्म. पिक्चर बॉक्स का हम क्यों यूज़ करते हैं, फॉर्म पर इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए. ऑल इमेजेस आर सेट विद द पिक्चर प्रॉपर्टी. और जितनी भी इमेजेस होती हैं उनको सेट किया जाता है पिक्चर प्रॉपर्टीज़ पे. नेक्स्ट इज लेबल. लेबल क्या होता है, दिस कंट्रोल डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द फॉर्म. लेबल पे जो हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, जो उनका लेबल हमको, जो टेक्स्ट हम फिल करेंगे, जैसे हम जब हमारा कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसमें लेबल नेम दिया होता है और एक बॉक्स बना होता है जिसमें हम अपना नेम फिल करते हैं. तो उस नेम को, उस बॉक्स को कैसे पता चलता है कि उस बॉक्स में हमको नेम ही फिल करना है, क्योंकि उसमें हमको लेबल दिया गया जाता है नेम का. सो वी कैन नॉट एडिट दिस टेक्स्ट. उस टेक्स्ट को हम एडिट नहीं कर सकते. लेबल्स कॉमनली आइडेंटिफाई अदर कंट्रोल्स दैट कैन बी ट्रांसपेरेंट. ये ट्रांसपेरेंट होते हैं. टेक्स्ट बॉक्स.
टेक्स्ट डिस्प्ले बाय द कंट्रोल्स कैन बी एडिटेड। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, जैसे वही जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी लेबल का, नेम कि नेम के अंदर एक बॉक्स होता है, बॉक्स में जब हम नेम फिल करते हैं तो उस बॉक्स को हम बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स, और नेम जो डिफाइन करता है उस टेक्स्ट बॉक्स को वो होता है हमारा लेबल। द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल acts like a mini text editor, and its most important property it is the text property। इसको हम बोलते हैं text property, और ये बहुत important property होती है। This property can set the text on the control or read the text that we enter। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, हमारे टेक्स्ट को सेट करती है कि हमारे कितना टेक्स्ट, हमारा जो टेक्स्ट यानी हम जो टाइप करेंगे नेम वो कितना होगा, उसको रीड करता है और उसमें हम टेक्स्ट एंटर करते हैं। फ्रेम, we use this control to draw boxes on the form and to group other elements। फ्रेम है, फ्रेम किस लिए होता है, बॉक्सेस ड्रॉ करने के लिए, कोई भी बॉक्स अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो फॉर्म पर, उसके लिए आप फ्रेम का यूज़ करते हैं। कमांड बटन, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑफ द विजुअल बेसिक इंटरफेस। अ कमांड बटन रिप्रेजेंट एन एक्शंस विच इज़ कैरिड आउट व्हेन वी क्लिक ऑन दैट बटन। और कमांड बटन क्या करता है, रिप्रेजेंट होता है एक ऐसे एक्शन पे जो कैरी आउट होता है व्हेन वी क्लिक ऑन दैट बटन, जब वो उस बटन पे क्लिक करेंगे तो कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा। चेक बॉक्स, चेक बॉक्स क्या होता है, द चेक बॉक्स कंट्रोल्स प्रेजेंट अस विद वन और मोर ऑप्शंस दैट वी कैन सेलेक्ट। तो चेक बॉक्स किस तरीके से होता है, जब हमारे पास 3-4 ऑप्शंस हो जिनमें से हमें सेलेक्ट करना हो, तो इस तरीके के चेक बॉक्स होते हैं। इनमें से जैसे हमने 2 नेम है तो इनमें से हमको कौन सा सेलेक्ट करना है, ये करना है, तो इस तरीके से चेक बॉक्स आपको शो होंगे। ऑप्शन बटन, द ऑप्शन बटन और रेडियो बटन कंट्रोल अपेयर इन ग्रुप्स एंड वी कैन चूज ओनली वन ऑफ देम। ऑप्शन बटन क्या होता है कि एक ऐसा रेडियो बटन होता है जिनमें से हम सिर्फ ग्रुप ऑफ कंट्रोल्स होते हैं जिनमें से हम ओनली एक ही चूज़ कर सकते हैं। वी कैन आइदर चूज एन आइटम फ्रॉम अ लिस्ट और एंटर द न्यू स्ट्रिंग इन द एडिट फील्ड। नेक्स्ट इज लिस्ट बॉक्स, दिस कंट्रोल कंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस एंड वी आर अलाउड टू चूज मोर देन वन ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। नाउ और लिस्ट बॉक्स क्या होता है, लिस्ट बॉक्स एक लिस्ट ऑप्शन आती है हमारे पास जिसमें से हम चूज़ करते हैं उस लिस्ट में से ऑप्शंस को चूज़ करते हैं। द लिस्ट बॉक्स कंट्रोल कैन कंटेन मैनी लाइन्स एंड वी कैन स्क्रॉल द लिस्ट टू लोकेट आइटम। जो भी आइटम लोकेट है इस लिस्ट में उनको स्क्रॉल करके भी हम उन लाइन्स को, ये लाइन्स कंटेन करते हैं और उनको हम देख सकते हैं बाय स्क्रॉलिंग। Combo box, this control is similar to the list box control but it contain a text edit field। We can either choose an item from the list or enter a new string in the field। HR control box, timer, drive list, directory list box, file list box, shape, line, image, all these commands you have to read, and if you are able to try this in your homes, then you have to try। Next topic is project window, this window display a list of forms and other objects that constitute the applications। This list is organized in the form of a branching structure like window explorer। To open any object we can double click on its icon in the object window। और यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रोजेक्ट विंडो क्या होती है, प्रोजेक्ट विंडो में आपकी जो जैसे आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है, इसी तरीके से प्रोजेक्ट विंडो यूज़ की जाती है। प्रोजेक्ट विंडो के अंदर हमारा फॉर्म्स होता है, उस फॉर्म के अंदर भी आप कौन से फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं उनका नेम होता है। कोड विंडो, और नाउ कोड विंडो क्या होती है हमारी, वेन एवर द यूज़र ट्रिगर एन इवेंट बाय क्लिकिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। जो भी आप फॉर्म पर कंट्रोल्स पुट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, उनको किस तरीके से आप ट्रिगर करेंगे यानी कैसे यूज़ करेंगे, उनका यूज़ क्या होगा, उसकी प्रोग्रामिंग कहाँ पे होती है, कोड विंडो पे। जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं कंट्रोल्स की उनको हम बोलते हैं कोड विंडो।
So the program code or procedures written for that object gets executed by the computer to perform an appropriate action. तो इन प्रोग्राम्स को क्या होता है, जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं बाय द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन अप्रोप्रिएट एक्शन, ताकि उससे क्या हो, एक अप्रोप्रिएट एक्शन परफॉर्म हो. द कोड विंडो इज द प्लेस वेयर you write and event procedure for an object. To open the code window related to an object, just open the form which contain the object and double click on the object. अब आपको क्या करना है, जब कैसे ओपन ये विंडोज़ यानी इन कोड्स को कैसे एग्जीक्यूट होंगे, जो भी आपने फॉर्म पे ऑब्जेक्ट कंटेन किए हैं आपको उन पर डबल क्लिक करना है. डबल क्लिक करते हैं उन फॉर्म्स की जो फॉर्म लोड होगा वो आपकी कोडिंग कंटेन कर लेगा. द फॉलोइंग विंडो विद 2 कॉम्बो बॉक्सेस विल अपेयर ऑन द स्क्रीन. नेक्स्ट इज फ्रॉम लेआउट विंडो. फॉर्म लेआउट विंडो क्या होती है, दिस विंडो गिव्स द फैसिलिटी टू चेंज द लेआउट एंड पोजीशंस ऑफ द फॉर्म while designing an applications. It is used to change the position of any form by dragging and placing it on the desired segment on the screen पर आप कहीं पर भी इन फॉर्म को ड्रैग करके प्लेस कर सकते हैं और इनकी पोजीशंस, फॉर्म्स की जो पोजीशन है उनको भी चेंज कर सकते हैं. व्हेन वी एग्जीक्यूट द एप्लीकेशन, जब हम एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करेंगे, द फॉर्म अपेयर्स ऑन द मॉनिटर विद द असाइंड लेआउट. तो क्या होगा, जब हम एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो फॉर्म अपेयर होगा वो कहाँ होगा, ऑन द मॉनिटर विद द असाइंड लेआउट, जो भी आप लेआउट असाइन करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज डेवलपिंग अ विजुअल बेसिक एप्लीकेशन. अब विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस को हम डेवलप कैसे करेंगे. फॉर क्रिएटिंग इन एप्लीकेशंस इन वीबी, you first need to construct the user interface of the applications on a form by inserting the various control object on it from the toolbox. तो पहले हमको क्या करना होगा, फर्स्ट नीड्स टू कंस्ट्रक्ट द यूज़र इंटरफेस. फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा जो फॉर्म होगा उस पर हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा बाय इंसर्टिंग द वेरियस कंट्रोल, डिफरेंट जो कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको इंसर्ट करके कहाँ पे, फॉर्म पर, फ्रॉम द टूल बॉक्स. यू कैन देन डबल क्लिक ऑन एनी ऑफ दिस कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स टू ओपन द कोड विंडो into which you can type the basic language command specifying what action should get performed when the concerned control object is activated. फिर क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, फॉर्म हमारा जो ओपन है उस पर हम कंट्रोल्स को, ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करेंगे. देन उन पर डबल क्लिक करके, किसी भी कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स पर डबल क्लिक करके कोड विंडोज़ को ओपन करेंगे, जहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे बेसिक लैंग्वेज कमांड्स को, जो स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सा कंट्रोल क्या परफॉर्म करेगा और उनसे क्या कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरीके से एक्टिवेट होगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल बाय क्लिकिंग ऑन इट, उन पे क्लिक करके. थस देयर आर 3 मेन स्टेप्स टू क्रिएट एन एप्लीकेशन इन विजुअल बेसिक. 3 ऑप्शंस बताए गए हैं टू क्रिएट एन एप्लीकेशन. क्रिएट द इंटरफेस यानी मीन्स जो हमारा मेन फॉर्म होता है वो, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिएट द इंटरफेस. वो एक इंटरफेस है, हमारा फॉर्म क्या इंटरफेस है. सेकंड स्टेप द प्रॉपर्टीज़, सेट द प्रॉपर्टीज़. जो भी आपकी कंट्रोल्स यानी कि जो कंट्रोल्स और ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उनको सेट करना. देन थर्ड इज़ राइट द कोड. देन उनकी कोडिंग करना कि वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे. इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं. So this is so students, in this lecture अभी हम इतना ही पढ़ेंगे. इसके आगे जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. ठीक है. जब तक इतने भी टॉपिक हैं इनको केयरफुली रीड करें. We will meet in the next lecture with the remaining topics of this chapter. Till then, goodbye.